A very good morning to each and everyone present here. On behalf of Faculty of Law and NSS Rabindranath Tagore University, I extend a very warm, hearty welcome to each one of you for today's topic, social justice, threats and issues on the World Day of Social Justice, 20th February 2021. I take this privilege to warmly welcome our today's speaker, that is Mr. Anand sir, for being here and giving us time to share his thoughts on this topic, social justice and threats. Sir, I welcome you. Thank you so much for being here. Before starting the session, I would like to give share some credentials of Mr. Anand sir over here. As Mr. Anand Sharma's Anand sir, not Sharma sir, casual. Actually, my one of my friend is Anand Sharma. So every time that word comes from me with Anand. So Mr. Anand Kumar is presently working as an assistant professor of law in Jamshedpur Cooperative Law College, Jamshedpur, since 2008. Prior to joining Jamshedpur Cooperative Law College, he has also taught in Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. He has taken bachelor's degree in law in the year 2003 from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi, and master's degree in law from the Faculty of Law and University of Delhi only. He has also cleared UGC Research Fellowship examination, and he has a teaching experience of more than 13 years and has taught variety of subjects ranging from commercial laws to property laws and family laws as well. He has taken various sessions as resource persons in many training programs. He has presented a number of papers in various seminars and workshops. So I warmly welcome you, sir. Please I'm very excited about this topic, that is social justice threats, and because it's so vast, I don't know how much things can be covered in it. So now I request, I also welcome Dr. Nilesh Sharma sir, Dean, Faculty of Law, Rabindranath Tagore University, Madhvi Madam, Assistant Professor, Faculty of Law, and I'm also just waiting for the NSS team to be here because of some glitches in the network, they are not able to join, but they'll be joining us shortly. So over to you, Nilesh sir. You would like to say something, as you was like, I would like to say something. So please, over to you. Thank you, nice madam. Good morning, and a hearty welcome to one and all present here. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today we all gathered here to celebrate World Day of Social Justice, which is celebrated worldwide with a particular theme on 20th February every year. The theme of 2021 is a call for social justice in a डिजिटल इकोनॉमी, है ना. तो हर वर्ष जो है ये जो नेशनल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की एक थीम होती है, तो इस साल की भी थीम है कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी. ठीक है. तो on this auspicious day, Department of Law and NSS Rabindranath Tagore University have initiated and organized this invited talk or webinar on the topic social justice, current issues and threats. As you all know, Rabindranath Tagore University is a pioneer institute in social work. In that context, I am sure that this webinar or invited talk will be of much meaning. This resource person, Mr. Anand Kumar sir, is an eminent speaker, eminent scholar, and the assistant professor of Government Corporate Law College, Jamshedpur. And incidentally, he is also associated with RNTU Research Center. I welcome you, sir. Thank you. I am sure that this webinar or talk will be meaningful and thoughtful working and useful to all participants. As a Dean, Institute of Law, Rabindranath Tagore University, I once again welcome all of you present here and congratulate Law Department and NSS for organizing this invited talk. Over to you. मैं नाइस मैडम को हैंड ओवर कर रहा हूँ. नाइस मैडम.
Can you hear me? Hello? Yes, sir, I can hear you. Yes, sir, I can hear you. इसको Yes, sir. proceed करिए आगे, है ना? Yeah, sure, sir. Okay, madam. Sir, so now moving further, without wasting any time, I would like Anand sir to please start his session. Over to you, sir. Anand sir. Yes, thank you, nice ma'am. First of all, I would like to thank Rabindranath Tagore University, especially Nilesh sir, the Dean Faculty of Law, for giving me the opportunity to presenting my views on a topic which is very relevant today specifically. Then I like to thank Nice ma'am, HOD Law, RNTU. I would like to thank Madhvi ma'am, who is also present here, Assistant Professor, Faculty of Law, RNTU, as well as NSS for organizing this program. So this topic is very relevant in today's context, in the sense that this day is celebrated every year as a World Day of Social Justice. So the question is, why this day is celebrated as World Day of Social Justice? First of all, we would like to know that why this day is celebrated as World Day of Social Justice on 20th February every year, and what is the importance of this day? What is the history? What is the importance? Then we will see what is meant by social justice. Social justice is a term which cannot be circumscribed in a particular domain, particular area, because it is a very vast term in the sense that you cannot say this only this much is included into the meaning of social justice. The two words are associated, social as well as justice. And then we will see what are the provisions specifically in the Indian context, preamble, constitutional provisions. Then we will come to specific legislations, certain legislations which have been made to ameliorate the conditions of the downtrodden sections of the particular sections of the society. Then burning issues, the current issues which are affecting the social justice in the Indian context, which are leading to social injustice, and how we can overcome them. So this is the brief sketch of what I am going to discuss today. And I would like to all of you to be participative as well, so that it can be more interesting. So I would like to start sharing my screen, if you allow, with the permission of Dean sir. Yes, sir, you can. You can, sir. I have just a minute. I have just made a Word document only, not a slide, PPT slide. Okay, sir. So first of all, what is the history of World Day of Social Justice? How this concept originated? So this day is originated, this day is celebrated as World Day of Social Justice since 2009, every year on 20th February. Actually, what happened in 1995, a Copenhagen Declaration was signed. Copenhagen summit was held in Copenhagen, Denmark, in which numerous political leaders assembled to address the problem of social equality, poverty, unemployment, and therefore a declaration was signed, which was basically called as Copenhagen Declaration and Program of Action for Social Development. Copenhagen Declaration and Program of Action for Social Development. And later on, in the year 2005, just a minute. In the year 2005, finally, this 20th February was declared as the World Day of Social Justice, to be celebrated every year from 2009. So what is the purpose? Why this day is celebrated as the World Social Justice Day? Reason being, the only aim is to create awareness in the society, to raise your voice against social injustice to different classes of society, that they have been socially discriminated on the different grounds, maybe gender, maybe religion, maybe caste, maybe sex. So to create awareness, to raise your voice against social injustice, this day is basically celebrated as World Day of Social Justice, to create awareness. So as the Nilesh sir said, the theme of this today's, means 2021 World Day of Social Justice, is a call for social justice in the digital economy. The theme is a call for social justice in the digital economy. This is the theme of this year's World Day of Social Justice.
because we are moving towards a digital economy, but in digital economy, in this era of liberalization, privatization, and globalization, what we need to do for social justice, our requirement is a social justice. So specifically this theme, particularly in the context of digital economy, this theme has been selected. Now coming to what is the meaning of social justice, as I said already. As I said already, this term is not easy to define what is meant by social justice. It is a very wide term. It is a very wide term encompassing all the aspects of the society. Every individual is directly or indirectly affected. So I can say that social justice is basically giving equal treatment to the all class of the society without any discrimination on the ground of maybe gender or religion or race or caste or sex, without any not giving privileges to any particular class of the society. So this concept of social justice cannot be limited in certain words, specific corners of law, but we can see that this word consists of two words, social and justice. हिंदी में इसको कहें तो सामाजिक न्याय. So as we know, yes. So sorry to interrupt you. I'm extremely sorry to interrupt you, but NSS team has joined us. So I would like to welcome Dr. Rekha Gupta ma'am, NSS team, and Dr. Kiran Mishra, head of the Department Faculty of Education and in NSS team. So I warmly welcome Dr. Rekha ma'am and Dr. Kiran ma'am to both of you. Sorry to disturb you, sir, but this was must. So being a team, we have to do this. Yes. So I'm also over to you, thankful sir. to the NSS. I'm also thankful to the Yeah. NSS team for Yes, inviting sir. me, giving me this opportunity. Yes, So sir. warm Sir. welcome to them also. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Over to you, sir, now. Yes. So what is social justice? As I said that this term comprises of two terms, social and justice. तो हिंदी में जिसको सामाजिक न्याय बोले, तो न्याय की जो परिभाषा है, what is meant by justice? Justice, you can say in the simple sense, is fairness or the absence of discrimination, absence of, it can include many things, but this justice is to be read in the along with the term social justice. So social justice means justice in the society, fairness in the society. So it is the process, you can say, by which each and every one is fulfilling his societal role. There is no discrimination on the various grounds in the society, maybe on the gender, caste, religion, sex, no discrimination at all, no privilege to a particular caste, community, or religion. So everybody, if there is a perfect egalitarian society, we can say, if there is perfect egalitarian society, there will be a complete social justice that we strive for. Though it is, जिसकी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जब हम कहते हैं राम राज्य, जिसमें complete there will be complete social justice, though it is a we can say a dream kind of thing, but we strive, our constitution is strive, हम strive करते हैं to achieve that goal. So it is the, we can say it is a societal goal. It is a theory that focuses towards fairness in relation between individual and the society, in the sense that no one is discriminated on the ground of wealth or maybe education or religion or whatever. Now coming to the history of social justice, how this concept originated. The origination of this concept is said to be during 19th century, during the Industrial Revolution, as I have written here. During the Industrial Revolution, the emphasis was to promote egalitarian society and to remove exploitation of the marginal society. So at that time, in the old time, this concept of social justice was basically only limited to the economical aspect, to removing disparity between the rich and the poor. So it was more of focus toward distribution of wealth, distribution of capital, and more of the property aspect was there. But as we progressed, as the development of the society took place, so as in the context of nowadays, we can say society, this concept of social justice has moved towards a more broader concept. Broader concept in the sense that it is not focused only towards economic aspect.
it has, you can say that it has encompassed the scope of human rights. Complete human rights means it touches each and every aspect of the life of an individual. Each and every aspect, no discrimination at all. It is not only related to the economic aspect, it may be related to your position in the society, it may be your position in the as a women, as a weaker section of the society, your social status. So it is not only related to the economic aspect as it was considered in the olden times. So as I said, that this concept of social justice is very difficult to define, but there are certain basic aspects, certain basic principles of social justice, which we must understand. There are certain basic principles of social justice that we must understand so that we can easily understand the concept of social justice. There is no finite definition, but there are certain basic principles of social justice. First of all, as we can see, is the access to resources. Access to resources means there must not be an unequal access to the resources. There must be equal distribution of resources, equal opportunity to everyone to those resources. If we deny a particular person a particular opportunity to access the resources, for example, if you go to, if a particular person, particular child from an affluent family or a rich family, obviously he will go to a good school, he will get a good education, he will go to good colleges, and then ultimately he will get a good job or a good salary. And consequently, what will happen, that his future generation, his child also will be getting good education, and this vicious cycle of inequality or access to resources will continue. So this vicious cycle of the exploitation or the we can say unavailability of resources to a particular community will continue. So this is one of the aspects, that the excess of resources must be equal. There must not be unequal resources of society. The another concept is equity. Equity in contrast with equality. Equity in contrast with equality. Equity must be there in the society. Everybody must be given equal opportunity, considering their need, their status. If somebody have been exploited for more than 100 years, then we cannot give everybody and another person who is already advanced in the status of the society, strata of the society. So we will have to give them unequal opportunity, more chances have to be given to that particular downtrodden member of the society, so that there can be equality in the society. So the equity and equality are two different concepts. In contrast, sir, please mute kar lijiye. So in contrast with equality, where everybody is given equal opportunity to move towards the same outcome, but in concept of social justice, we don't want to say that we need equality, rather we need equity. Third concept we can say is the participation. Participation means everybody should have say in the decision making process. If the social injustice will obviously occur when a certain class of people or a certain group of policy makers make decision for a large group of people. Some people, if the particular class of people are unable to voice their opinion, if their views doesn't matter in the whole of the decision making process, then obviously it will lead to social injustice. Then is the diversity. We need to recognize that particularly in our Indian context, there is diversity. We need to recognize each and every aspect, maybe gender, maybe ethnicity or sex. Each and every aspect of diversity must be taken into considerations while making the different policy decisions. Unless we take into consideration the different needs, different demands of the different classes of the people, the diversity is not respected. As we say, in the case of religion, we say if the religious bigotry will be there, then obviously it will lead to social injustice in the society. And the last we can say is the human rights. Human right is the most important principle and form a part of the social justice.
we can say the human rights and the social justice are basically interrelated concepts. Unless and until human right is provided to each and every individual of the society. Yes, ma'am. Anand sir, sorry to interrupt, but please bilingual हम चलेंगे तो better रहेगा, because many of the students are from Hindi medium also. Yes, yes, yes. Okay, So okay. please kindly, yeah. Yes, yes. Thank you. So ह्यूमन राइट्स, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स जब तक हर एक इंडिविजुअल को ह्यूमन राइट हम नहीं देंगे, बेसिक डिग्निटी नहीं देंगे, बेसिक राइट्स विच अ पर्सन रिक्वायर, जो कि एक आदमी को जरूरत होती है एज ए ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए, तब तक सोसाइटी में जस्टिस की बात करना, टू टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, वो एक बेकार की बात होगी. Unless we give human right to each and every individual in the society, there cannot be a social justice in the society. And for that reason, therefore, इस कारण से दोनों एक इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं. जब तक ह्यूमन राइट्स नहीं प्रोवाइड होगा तब तक सोसाइटी में जस्टिस की बात हम नहीं कर सकते. तो ये हम कहें कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ कि सोशल जस्टिस में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है. नाउ अब हम इंडियन सिनेरियो पर अगर आए कि व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो, so as we can see that the majority of the population of our country have already been deprived, maybe the Dalits or backward classes, women, children, all have suffered. There is inter-state, inter-religion, inter-class disparity has हमारे सोसाइटी में. और जो हमारे सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करता है कि देयर मस्ट बी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन. किसी को कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए. एक ये सोशल जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके फाउंडेशन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, इट इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि द वर्ड सोशल जस्टिस एज सच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डिफाइंड नहीं है, बट इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल जस्टिस वर्ड को यूज करता है एक वाइडर सेंस में. इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस तीनों को इनकॉर्पोरेट करता है अलग अलग प्रोविजंस के दरमियान. तो जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रियम्बल की बात करें, जो हिंदी में जिसको प्रस्तावना कहा गया है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट, अगर आप लोगों ने प्रियम्बल देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, पढ़ा होगा, तो ये शुरुआत ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, और लास्ट बाद में ये कहता है टू प्रोवाइड जस्टिस. जस्टिस कैसा? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो प्रियम्बल जस्टिस की बात करता है, जस्टिस इन द सेंस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये इन सब चीजों की बात तो करता ही करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस एक वाइडर सेंस में यूज किया गया है. ये हमारा गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम एक ऐसी सोसाइटी की ओर स्ट्राइव करें. वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी justice in the every aspect of the every domain of the life of the individual, whether we talk of social justice, whether we talk of economic or political, every aspect will be covered within the domain of this justice. Then this is the goal of our constitution mentioned in the preamble, but this goal, how to achieve the ideals of social justice, it will only remain on paper. अगर ये पेपर पे ही रह जाएगा, अगर हम उसको गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स को उसको इन्फोर्स करने के लिए राइट्स ना प्रोवाइड करें, एंड दैट दोज राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर फंडामेंटल राइट्स. दिस सोसाइटल राइट्स have been can be enforced by an individual, can be enforced by the citizen through various provisions provided in the part 3rd of the constitution. part 3rd में दिया हुआ है जिसको कि हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, which are enforceable as a fundamental rights. तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. The first fundamental right is आर्टिकल 14 to 18, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है. इक्वालिटी में जब हम करें तो 14 में इक्वल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल. तो ये सारे जो पर्टिकुलरली 14 to 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम इनको देखें पर्टिकुलरली 14 to 18, तो ये इक्वालिटी की ही बात करते हैं.
particularly equality in the different context. या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल 16 इसकी बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड, मे बी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, तो उसके आर्टिकल 15 बात करता है। जब हम अनटचेबल की बात करें, जो प्रैक्टिस पहले फॉलो होती थी, तो उसके आर्टिकल 17 बात करता है। तो ये बेसिकली जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 to 18 है, वो इक्वालिटी की बात करता है, एंड इट ऑब्वियसली इट वुड लीड टू सोशल जस्टिस। Then coming to the provisions of directive principles of state policy mentioned under Part 4 of the Constitution. Part 4 of the Constitution, as have been said by the various judgments by the Supreme Court, particularly in the Keswanand, Minerva bills, etc., कि fundamental rights और directive principles are like the two wheels of a chariot, एक रथ के दो पहिए की तरह हैं, कि जब तक दोनों सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक वो रथ सही तरीके से चल नहीं पाएगा। Similarly, if we give only rights, if we talk about only fundamental rights, and if we ignore the directive principles of state policy, then obviously the society, the constitution properly cannot function. और वही रोल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है कि वो एक गोल सेट करता है, इट मैंडेट्स स्टेट, ये स्टेट को मैंडेट देता है कि आप इस गोल को स्ट्राइव करने के लिए, इस स्टेप को अचीव करने के लिए ये स्टेप्स आप लें। तो जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आर्टिकल 35 to 51 में वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोविजंस हैं, वुमेन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वर्कर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्री लीगल एड, तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आर्टिकल 35 to 51 में दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग कहें कि आर्टिकल 31 में क्या 38 में कहा गया है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए स्टेट काम करेगा टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। 39 में बहुत सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि वुमेन और मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये सारे गोल्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 39A हमारे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 14 पे आए, विलेज पंचायत की बात करता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में, जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए गए, बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड फॉर वीमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, दिस इम्प्रूव द this became an effective tool, effective institution to remove inequality in the society, to give equal opportunity, equal status to the women in the society. फिर उसी तरह और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 41, 42, 43, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद हम फर्दर और भी प्रोविजंस पर आए, तो जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, SC OBC कमीशंस, तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, बहुत सारे ऐसे मैंडेट हैं जो कि रिक्वायर करते हैं कि हम ऐसा कुछ करें, हम ऐसे स्टेप्स लेते रहें, मैंडेट करता है स्टेट को कि हम ऐसा कुछ करते रहें, सो दैट there is in the society everybody is treated equality, जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको सारों को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। रिजर्वेशंस का प्रोविजंस है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं फॉर द पर्टिकुलरली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करें, ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्टेट, जो सोशल जस्टिस के हमारे आइडियल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। फिर हम अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे सोशल जस्टिस को अफेक्ट करते हुए क्या कुछ करंट इश्यूज हैं जो हमारे जो फैब्रिक है सोशल जस्टिस का, जो सोसाइटी के फैब्रिक को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कुछ इश्यूज हैं जो कि करंटली हम कह सकते हैं कि ट्रेंड कर रहे हैं। द राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज वी कैन सी इन द सोसाइटी। जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि वीमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो जब हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी को प्रॉपर रेस्पेक्ट, प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे,
तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस की बात नहीं होगी. So this is a challenge to the concept of social justice. Religious bigotry, जब हम religious bigotry की बात करते हैं, religious discrimination की बात करते हैं, discrimination on the ground of religion, और bigotry भी एक ऐसा concept है जिसके द्वारा आप सोसाइटी में injustice prevail करता है, कि in the sense that you give preference to certain particular class of religion, or you decry certain class of religion. So this concept of social, this religious bigotry, then this issue of CA, NRC, हालांकि इसको सोशल जस्टिस से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, बट एनआरसी की बात करें पर्टिकुलरली, एज इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन आसाम, वी हैव सीन दैट कि ये सोशल अपील, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए without due to non proper implementation of the mandate. सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंडेट दिया था कि एनआरसी इंप्लीमेंट किया जाए, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्ट आसाम में. उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया. उसके कारण भी बहुत सारे, हम कहें कि गलत तरह की भावनाएं लोगों में भड़की. फिर सीए और ये एनआरसी का जो पूरे इंडिया में कॉन्सेप्ट आया, उससे भी लोगों के बीच में विद्वेष भड़का. जब डिजिटल डिवाइड, अनदर कॉन्सेप्ट, एक डिजिटल डिवाइड हो रहा है हमारे सोसाइटी में. सम पर्सन्स हैव एक्सेस टू द डिजिटल वर्ल्ड, सम पर्सन्स डोंट एक्सेस टू द डिजिटल वर्ल्ड. तो एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है. पर्टिकुलरली जैसे कि हम कहें, जैसे अभी हमारा ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो कुछ लोगों को इनका एक्सेस है, कुछ लोगों को इनका एक्सेस नहीं है. जिन लोगों को एक्सेस नहीं है, ऑब्वियसली दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. Then we have to consider the effect of liberalization, privatization and globalization as well. इसका क्या इफेक्ट हुआ, कि हमारे सोशल फैब्रिक पे क्या इफेक्ट हुआ. रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर. जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं. तो इस इशू को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है. देन रूरल अर्बन डिवाइड, जो शहर में और गांव में, दोनों के बीच में जो डिवीजन है, गांव में जो रूरल एरियाज हैं हमारे, उनमें फैसिलिटीज, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब हम अर्बन एरियाज की बात करें तो उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों में जो डिवाइड हो रहा है, उसके कारण क्या सोशल इनजस्टिस पर इफेक्ट पड़ रहा है. इनकम डिस्पैरिटी, बहुत ज्यादा इनकम में डिस्पैरिटी है. हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि सम 1% और 2% ऑफ द population of the India is controlling whole of the more than 50% of the wealth of the India. तो ये जो इनकम डिस्पैरिटी हो रही है, इसका सोशल जस्टिस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. देन देयर इज फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो एक हमारा अभी बहुत बर्निंग टॉपिक है. जो हमारे फार्म लॉज आए हैं, उनके अगेंस्ट में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका हमारे सोशल जस्टिस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी देखने की जरूरत है. कि ये हमारे लोगों के मेंटेलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है. लास्टली कोविड का इफेक्ट, कोविड इंड्यूस्ड माइग्रेशन. जब हमने कोविड के कारण जब लॉकडाउन हमने इम्पोज किया, तो उससे इंड्यूस जो माइग्रेशन हुआ, जैसा कि हम लोगों ने मीडिया में देखा, लार्ज स्केल माइग्रेशन वाज देयर. लेबर वाज ट्रीटेड एज कमोडिटी. लेबर को कमोडिटी की ट्रीट किया गया. हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा कि बेंगलोर से ट्रेनें चली तो बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, एमपी भाग के आए. लेकिन जब वहां पे लेबर की प्रॉब्लम होने लगी, शॉर्टेज होने लगी, वहां के बिल्डर्स ने गवर्नमेंट के साथ कहा कि नहीं, ये ट्रेन्स बंद कर दो, क्योंकि वो हमारे लेबर की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेबर नहीं मिल रहे. तो आपने ट्रेन्स बंद कर दी. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रीटिंग लेबर एज द कमोडिटी. तो आप उसको सामान की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हमको उसको कैसे यूज करना है. जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने यूज किया, जब हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने उनको भगा दिया, फिर जरूरत पड़ी तो हम कह रहे नहीं, अब जाने नहीं देंगे. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस COVID-19 इन द context of social justice? COVID induced hunger, poverty, unemployment. There was large scale unemployment was there. लोगों के पास
बहुत लोगों के जॉब चले गए, बहुत लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो इन सब का और उसका कंटिन्यूड इफेक्ट अभी भी हमारी इकोनॉमी पर हम कहते हैं कि कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो इसका कोविड का हमारे सोशल जस्टिस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि हमारे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमें देखने की जरूरत है। तो ये कुछ हमारे बर्निंग इश्यूज हैं आज के डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हमारे सोशल जस्टिस को इफेक्ट करते हैं। Then coming to the efforts which have been made towards achieving the goals of the ideals of our constitution, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस का गोल है उसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया है। तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए प्लेथोरा ऑफ लॉज हैव बीन मेड, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, पर्टिकुलरली फॉर द वीकेंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब हम लेबर की बात करें तो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन बनाए गए हैं कि मिनिमम वेजेस हैं, कि मिनिमम वेजेस। वुमेन की बात करें तो वुमेन के लिए वैरायटी ऑफ लॉज, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, डॉरी लॉज, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाए, और रिजर्वेशंस के लिए लॉ बनाए गए हैं, चाइल्ड लेबर अबॉलिशन। देन देयर इज कंटेंशियस इशू ऑफ पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज पे थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा। जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं, जैसा कि हमारा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम मैंडेट करता है, देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल लॉ फॉर द होल ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ग्राउंड पे बिना डिस्टिंक्शन किए हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हमने देखा है और हम देखते आ रहे हैं कि इन सर्टेन रिलीजन, बट कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रिलीजन, the women has been relegated to the lower position in comparison to the men। कि महिलाओं को पुरुष के कंपैरिजन में नीचे रखा गया। अगर हम पर्टिकुलरली मुस्लिम लॉ के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर डिवोर्स की ही बात करें फॉर एग्जांपल, तो मुस्लिम लॉ में जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ था उसमें क्या था, द हस्बैंड हैड अनलिमिटेड, एज वी से, अनलिमिटेड अनफेटर्ड पावर ऑफ गिविंग डिवोर्स टू हिज वाइफ। He can give divorce to his wife on his whims। जब उसकी इच्छा होगी वो डिवोर्स दे सकता है। कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन इससे क्या हुआ कि वीमेन द वाइफ डिड नॉट हैव द राइट टू गिव डिवोर्स टू हर हस्बैंड। उसको अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का राइट नहीं था, एक्सेप्ट ऑन सर्टेन लिमिटेड ग्राउंड्स। अब ये जब हम इसकी बात करें तो आप कह रहे हैं कि हम पुरुष को बहुत ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को बहुत कम अधिकार दे रहे हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? जस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन। आज कि हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, हमारा कस्टम्स ऐसा है, और वो even if the woman is suffering, even if the wife is suffering, even if husband is not maintaining her, even if the husband is ill treating her, वाइफ हैड नो रेमेडी, उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी का ग्रोथ होता गया है तो हमने कुछ स्टेप्स इसमें लिए हैं। जैसा कि हमारा सायरा बानो का केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आया। ट्रिपल तलाक, मुस्लिम्स के अंदर जो एक ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट था, जिसको तलाक बिद्दत बोला गया, कि आप 3 बार तलाक बोलते हैं एक ही सेंटेंस में 3 बार, या 3 अलग अलग सेंटेंस में 3 बार तलाक बोलते हैं, तो दिस तलाक हैज द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इर्रिवोकेबल डिवोर्स। कि आप जैसे ही आप बोल देते हैं, ये अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया गया, पति को दिया गया, कि वो 3 बार तलाक बोल देगा और वो डिवोर्स आपका हो जाएगा। वाइफ हैज नो रेमेडी। तो इन सब चीजों से ऑब्वियसली जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो देयर कैन नॉट बी जस्टिस इन द सोसाइटी अनलेस एंड अनटिल men and women are given equal treatment, equal respect, equal position in the society। तो ये ट्रिपल तलाक के जो कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली इन द सुन्नी लॉज, हमारे इंडिया में मैक्सिमम सुन्नीस पॉपुलेशन है, तो सुन्नी लॉ में इसको
फॉलो किया जाता था, और इसको फिर सायरा बानो के केस में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस केस में, सायरा बानो के केस में 3-2 के मेजोरिटी से कहा कि दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक or any form of talaq which has the effect of instantaneous and irrevocable divorce, this practice is void and has no effect. So Supreme Court has also taken certain steps, Supreme Court ने भी steps लिए हैं so that कि एक दायरा है, एक लिमिट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कि आप किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर state shall not intervene in the matter of religion of any individual. The individual shall have a right to profess, practice and propagate religion. अगर मेरे रिलीजन का कुछ फंडामेंटल चीज है, कॉन्सेप्ट कुछ है, तो उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा। और ऑब्वियसली इट इज ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एक बेसिक पार्ट है कि हर एक आदमी को एक अपना रिलीजन प्रोफेस, प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता होगी। तो एक दायरा है जिसके अंदर आप इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस दायरे से बाहर जाकर के कुछ सुधार हम कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिल सके, वीमेन को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल सके, तो ऑब्वियसली हमको इसमें स्टेप लेने की जरूरत है। और वही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया और अल्टीमेटली हमारी पार्लियामेंट ने भी एक, पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया और उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जैसा कि हम सब जानते हैं। सब्सिक्वेंटली एक लॉ आ गया और इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस, पर्टिकुलरली ट्रिपल तलाक का, ये वाइड होगा, इलीगल होगा एंड साथ ही साथ पनिशेबल भी होगा। इफ द हस्बैंड प्रोनाउंसेस सच फॉर्म ऑफ तलाक, अगर इस तरह के तलाक देता है हस्बैंड, तो उसके लिए उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। अब इस पे भी कुछ डिस्प्यूट है कि वेदर इट शुड हैव बीन मेड पनिशेबल नॉट, इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए थी, जेल नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ आपने कह दिया कि डिवोर्स वैलिड नहीं होगा, वाइड होगा, तो मींस योर मैरिज इज सब्सिस्टिंग, मैरिज वैलिड है लेकिन हस्बैंड जेल में है। हस्बैंड को आपने जेल कर दी और मैरिज अभी सब्सिस्टिंग है, 3 साल के लिए जेल भेज दिया, तो बाकी फैमिली का क्या होगा? वाइफ का भी क्या होगा? सी इज स्टिल अ वाइफ, क्या आपने उसको डिवोर्स को वाइड डिक्लेयर कर दिया कि? तो ऑब्वियसली इस पे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, एक प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है कि जिसके द्वारा दिस प्रैक्टिस व्हिच वाज वेरी डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, उसको अबॉलिश करने की कोशिश की गई। तो बहुत सारे सुधार किए जाने की जरूरत है, बहुत सारे सुधार किए गए हैं, बहुत सारे लॉ बने हैं हमारे सोशल इनजस्टिस को दूर करने के लिए। आगे क्या करने की जरूरत है? तो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट फर्स्ट ऑफ, we need to change our mindset first of all. The solution lies only with us, within us, कि हमारे अंदर इसका solution है। The need of the hour is to ensure proper and balanced implementation of the policies. जो हमारी policies हैं उनका proper implementation होना चाहिए। जो हमारे goals हैं उस goals को achieve करने के लिए हम law बनाते हैं, government policies बनाती है, obviously to promote social justice. Intention वही होता है लेकिन implementation सही नहीं होता है। So their intention सही होता है लेकिन implementation नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में coordination की जरूरत है। There must be proper implementation of the policies so that जो हमारा goals है, constitutional goals है, जो social progress का ये policies जो एक tools की तरह काम कर सके, जिस intention के साथ हम laws बनाते हैं, जो policies बनाते हैं, उन policies को आगे हम further ले जा सकें, so that there is no social injustice in the society. So, अगर हम कहें कि सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली 20th फरवरी, जब आज के दिन जब हम यूएन हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाता है, विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सो इन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी नीड टू strive towards achieving the goals of the social justice provided under our constitution. Different legislations have been made, different policies have been made. We need policies have been made with good intention, but we need implementation. Intention और implementation में coherence होना चाहिए कि जिस intention के साथ हम law बनाते हैं, जिस intention के साथ हम policies बनाते हैं, वो intention
वो हमारा फुलफिल हो, और जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, जो इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए. फॉर दैट वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट. With this I come to the end of my presentation. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो. नाइस मैम. थैंक यू सो मच आनंद सर. आपने बहुत सही बात कही कि माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है. जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, अभी हम सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो मैं अपने कलीग्स के साथ यही चीज डिस्कस हो रही थी हमारी, और वहां पे भी यही बात निकल के आई कि हमें सोच बदलनी है. हमको माइंडसेट चेंज करना है, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि लॉज बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाते जिस तरीके से होने चाहिए, जो सोच होनी चाहिए. बहुत सही बात आपने बोला का सल्यूशन जो है हमारे अंदर होना चाहिए. ये बात बहुत सही है. लेकिन मैं एक चीज क्वेश्चंस मैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाना चाहूंगी. तो आई वुड लाइक टू आस्क द पैनलिस्ट, ऑल द अटेंडीज आल्सो, if panelists have any question or attendees have any question, please ask sir. So there is a question, one question. What is the individual responsibility towards the social justice? The individual responsibility, किसी भी इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसा कि हमने कहा कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने माइंडसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करें. कि वो हम देखें कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, या हमारे आसपास के लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी ग्राउंड पर. whether it is discrimination against women, whether it is discrimination in a particular class of the society or on the ground of religion. So first, जैसा कि कहा जाता है कि अगर दुनिया को सुधारना है तो पहले आप खुद में चेंज लाइए. So the responsibility of individual towards social justice is that first of all you change yourself, change your mindset, change your surrounding. आप अपने सराउंडिंग्स में देखें कि हमारे सराउंडिंग्स में कोई सोशल इनजस्टिस नहीं हो रहा हो, एंड हो रहा है, सो व्हाट रेमेडीज वी कैन टेक, व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू इंश्योर सोशल जस्टिस. ट्रू. सर, आपने ये चीज सही कही कि हम और मतलब कि हमको आसपास देखना चाहिए कि हम क्या चेंज ला सकते हैं. ये बात बहुत सही है. सो ये तो एक स्टेप हो गया सर. इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी कि और क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम अपने सोसाइटी में सोशल जस्टिस ला सके. लाइक माइंडसेट तो हम चेंज कर ही रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं, और माइंडसेट चेंज करने के लिए सर एक चीज और होती है. मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट्स या बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा जब होता है, तो जो आसपास का माहौल देखता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली ऑल्सो कि आप किस तरीके से उसको, और क्या मतलब हो सकता है इसमें. जो एक चीज हमने बीच में पढ़ी थी, एक्सेस टू रिसोर्सेस, सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, यू मस्ट इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेस. कि जब तक इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेस नहीं होंगे तब देयर विल ऑब्वियसली विल लीड टू सोशल इनजस्टिस. जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई एफ्लुएंट फैमिली का बच्चा है तो वो अच्छी स्कूलिंग लेगा, वो अच्छे कॉलेजेस में जाएगा, अच्छी जॉब पाएगा, अच्छी सैलरी लेगा, और उसका फ्यूचर जनरेशन भी ऐसा ही आगे बढ़ते जाएगा. तो फर्स्ट द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबको देयर शुड बी एक्सेस टू इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज. जब तक इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर नहीं मिलेगी. हालांकि स्टेट उसके लिए इंडेवर करता है, हमारा गोल भी वही है, बट वी नीड मोर टू एक्ट टुवर्ड्स दैट गोल, कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर मौका मिल सके, ताकि सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा ना मिले. So there's in relation to international scenario, as we see many countries are facing terrorist attacks and wars. So how can the people of that countries can seek for social justice? So terrorism, again, terrorism एक बहुत बड़ा मुद्दा है. Terrorism is a big issue which is affecting the fabric of the society. कि एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे सोशल जस्टिस पे एक बहुत बड़ा इशू है, कि इसको हम कैसे हमारे सोशल जस्टिस को अफेक्ट करता है. कि जब हम टेररिज्म होता है तो व्हाट इज द रीजन फॉर राइज इन द टेररिज्म, क्यों टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है. पहली बात कि हमें उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा. व्हाट इज द रूट कॉज, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद टेररिज्म का क्या इफेक्ट है,
आफ्टर मैथ ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, उससे हमारे सोशल फैब्रिक पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि सोशल जस्टिस सीख करने के लिए हमको कहें कि सोसाइटी में टेररिज्म को बढ़ावा क्यों मिल रहा है। कुछ लोगों के मन में यह भावना है कि हमें सोसाइटी में अपना प्रॉपर ड्यू नहीं मिला, प्रॉपर इंटाइटलमेंट नहीं मिला, जो जो हमारा इंटाइटलमेंट था, जो हमारे ड्यूज थे सोसाइटी से, जो हमको मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, एंड इट लीड्स टू डिसकंटेंट। और ये डिसकंटेंट को बढ़ावा देता है, डिसकंटेंट होता है सोसाइटी में, और ये दिस इज वन ऑफ द कॉजेज। ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर दिस राइज ऑफ टेररिज्म, बट ये एक इशू है जिसको हमको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इस टेररिस्ट अटैक से ऑब्वियसली हमारे सोशल जस्टिस पर भी इफेक्ट पड़ता है, कि लार्ज स्केल पर कम्युनिटी, लार्ज स्केल पर सोसाइटी को ये इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। क्वेश्चन मैम, आपका माइक म्यूट है। Sorry. Why the privileged class will want change in the society for social justice? Yes, this is the question. Why I would, if I am getting certain privileges, I am getting certain advantages because of my position, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे ये privilege ना मिले? And this is one of the hurdle. If we talk about political class, अगर हम political class की बात करें या economically किसी को privilege मिल रहे हैं, तो and this is the goal of the constitution. This is the goal of the constitution कि किसी को privilege ना मिले, equality मिले. And this is one of the hurdles to this ideals of the social justice. जब एक particular class is enjoying certain amenities, certain privileges, then obviously it would won't want to let it go. वो इसको छोड़ेगा नहीं और social justice को, injustice को बढ़ावा मिलेगा। और social justice को बढ़ने नहीं देगा। There is a question in chat box. नाइश, मेरा एक क्वेश्चन है। नाइश, मैं Yes ma'am. Please go ahead. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बहुत सारा कानून के अगेंस्ट कई लोग काम करते हैं, रेप कर रहे हैं। अभी उन्नाव में जो घटना घटी, अभी शिवपुरी में एक घटना घटी, महिला को दौड़ाया उसको, तो हम सब लोग कानून जानते हैं ये गलत है, फिर भी वकील उनके साथ खड़ा होता है, सब सामने दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो इंसानियत के नाते तो हमें वो चीज पे न्याय की बात करना ही चाहिए कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेकिन इतने सारे लोग होते हैं वो सोच नहीं बदलते हैं अपनी। लेकिन फिर जब हम सब जानते हैं, आप मान लीजिए वकील है, आपको पता है ये 100% गलत है, फिर हम उस व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से क्यों खड़े हो जाते हैं? यहीं पे हम उसको पनिशमेंट देना क्यों शुरू नहीं करते हैं कि आप रॉन्ग हैं? ये भी तो एक तरीका है आपको। हाँ, ये इस पे ये सवाल, ये जवाब आ सकता है कि नहीं कानून सबके लिए है, लेकिन कुछ चीजें हमें दिख रही है गलत है, तब भी हम साथ खड़े हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसे की लालच में। मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, तो फिर यहाँ पे न्याय की बात क्यों नहीं होती? हम क्यों उस व्यक्ति के, अगर परिवार में कोई गलत होता है तो हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसको फैमिली में बात नहीं करते, किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। जब सोसाइटी में इतने बड़े कांड हो जाते हैं, इतनी बड़ी चीजें हो जाती हैं, फिर हम उसके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? मेरा ये सवाल है सर से। यस मैम, यहाँ पे दो इश्यूज है। वन इज द लूप होल ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लूप होल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स का ये लूप होल है। जैसा कि कल परसों न्यूज में आ रहा था कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई कोर्ट नहीं जाना चाहता। हाँ, कि हमारे कोर्ट ऐसे डोलड्रम्स में कि कोई कोर्ट नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? कि हमारी जो आर्काइक लॉज हैं, जो हमारा प्रोसीजरल पार्ट है, कि लॉ को इन्फोर्स करने का जो मैकेनिज्म है, उसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि उसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे कि उन्नाव का केस हुआ, ऑब्वियसली वहां पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो लेकिन जो इन जनरल हम कहें कि कुछ इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पॉलिटिकल क्लास हैं या जो रिच पीपल हैं, ऑब्वियसली दे आर एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज लूप होल्स। उस लूप होल्स का वो फायदा उठा रहे हैं। हमारे एविडेंस लॉज में या प्रोसीजरल लॉ में बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डिले करते जाते हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डिले हो रहा है, और इसलिए
लोग अल्टीमेटली कोर्ट नहीं जाना चाहते, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। एंड फॉर दिस वी नीड वास्ट ओवरऑल इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे क्रिमिनल, पर्टिकुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। बहुत सारे चीफ जस्टिसेस कहते रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ स्टेप्स लोगों ने लिए, जजेस की वैकेंसी है, ऑब्सोलीट लॉज को चेंज करना है, नए लॉज लाना है, जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनमें चेंज करना है, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। और इन सब का जो लूप होल्स है ऑब्वियसली उसका फायदा उठा रहे हैं लोग और लोग बच रहे हैं। वही तकलीफ की बात है ये कि हम उस समय खड़े नहीं हो रहे हैं उनके साथ। एक इंसानियत के नाते जो माइंड चेंज की बात हो रही है, हम इंसानियत के नाते भी खड़े नहीं हो रहे हैं। हम कहीं कुछ लालच में या पद के जो भी जो आपने पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया या जो भी रीजंस हो, बट कहीं थोड़ी हमें इंसानियत रखना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं लेकिन मौका आता है तो हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एक स्टेज पे बात कर रहे हैं और कभी मौका आए तो हम दो लोगों की भी, एक लोग की, किसी की भी हम हेल्प कर पाए तो बड़ी तकलीफ होती है देख के। और हमेशा एक महिला को ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों? छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इंसानियत इतनी खत्म हो गई? और उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। आप कानूनी रूप से उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उनको पनिशमेंट मिल गए, निर्भया कांड में कितनी बड़ी चीजें हुई। अगर एक बोल रहे हो तो कि वो टीनेजर्स नहीं था, जब इतना बड़ा वो अपराध कर रहा है तो उसको सब चीज पता है, इसलिए वो इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा है अपराध करने की। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एज क्राइटेरिया फिर उसमें कहाँ आता है? अपराध अपराध होता है, वो छोटे बच्चे ने किया, मैं ऐसा मानती हूँ। तो उसको आज एज से नहीं देख सकते, उसने कितना बड़ा अपराध किया है, मतलब बहुत ही दंडनीय था। शायद मैं मुझे उतना गंदा मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी। बहुत तकलीफ होती है उन चीजों से कि हमें जब मोमबत्ती जला देने से, सड़क पे ये रैली निकाल देने से इन चीजों से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और नाइश या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं मुझे जानते हैं कि मैं महिलाओं की थोड़ी ज्यादा पक्षधर हूँ। और महिलाओं को ही, चाहे फैमिली में हो चाहे बाहर हो, सब जगह टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मुझे तो मतलब हम सब कहीं ना कहीं पुरुष उसमें इन्वॉल्व है और जब मौका आता है बोलने का तो हम सब पीछे हटते हैं। तो मुझे लगता है कानून तो है लेकिन हमें थोड़ा सा समझाने की भी जरूरत है, जिसपे शायद अभी हम और नाइस आगे काम करने वाले हैं उसको बुक के रूप में, कि हम थोड़ा सा भी कहीं सुधार ला पाए। ये हमारा और नाइस का प्रयास होगा तो आगे। और सर से भी हम लोग सलाह लेंगे, सर हम इसमें कानूनी रूप से क्या अच्छा और कर सकते हैं। तो सर आपकी भी इसमें हम लोग एडवाइस लेंगे। अभी प्लानिंग में कोशिश करते हैं कि हम उसमें सक्सेस हों, कुछ अच्छा कर पाए हम समाज के लिए। ये हमारा प्रयास है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रयास है मैम, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आप लोगों की कुछ थैंक यू मैम। थैंक यू मैम फॉर योर क्वेश्चन। बहुत सही बात किरण मैम ने कही। कल मैं न्यूज में कहीं पे सुन रही थी कि जो निर्भया केस में जो टीनेजर था, उसमें जो जिस तरह का क्राइम उसने करा, जो भी उसकी एज थी, वाज अ टीनेजर, व्हाटएवर। पर्सनली मैं भी ये फील करती हूँ और मेरा पॉइंट यही है कि जो इस लेवल तक जा सकता है वो बच्चा नहीं हो सकता, वो बच्चे की सोच नहीं रख सकता। कल मैं न्यूज में कुछ सुन रही थी तो उसमें यही बोले, प्राइमरीली सोर्स जो था निर्भया की डेथ का, उस लड़की की डेथ का, उसकी उस टीनेजर की एक्टिविटीज की वजह से। तो आप सोचिए कि कितना, मतलब वो बच कैसे कर। और है, मैं पूछना चाहूंगी कि why the reservation policy should not be implemented only based on socially and economically backward class apart from caste or classes? What is the question? Yes sir. Question, what is the question ma'am? Yeah, that is what it's very I'm not kidding. Why the reservation policy should not be implemented only based on socially and economically backward, या फिर अपार्ट फ्रॉम कास्ट। अच्छा ठीक है सर, ये पूछना चाह रहे हैं कि सोशली और इकोनॉमिकली अगर कोई बैकवर्ड है तो उसके बेसिस पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, बनस्पत इस पे दे रहे हैं कि कास्ट क्या है या क्लास क्या है। ये है क्वेश्चन।
जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट SC/BC। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की बात करते हैं। सो वो हमारा स्कोप एक डिफाइन करता है कि हम सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया होगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हु आर सोशली बैकवर्ड, कैसे हम सोशली बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया वहां पर आता है, हिस्ट्री आती है, हमारे जो ट्रेडिशनली क्या होता रहा है सोसाइटी में, जो दलित्स हैं या जो भी SC STs OBCs हैं, दे आर ऑब्वियसली डीम्ड टू बी सोशली बैकवर्ड। तो जब हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन मीन्स ये कुछ समझ में नहीं आता है कि जब हम कहें कि आप फाइनेंस जैसे अपर क्लास में, सपोज इन अपर क्लास इफ यू गिव रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, कि आप वहाँ पे कोई SC ST OBC की बात नहीं करते हैं, आप जनरल में भी कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन देंगे। हाँ, कि जब हम ना SC की बात करते हैं ना ST की बात करते हैं ना OBC, जनरल बात करते हैं कि whoever is economically backward, whether he belongs to a particular general category or whatever category, अब जब हम उनको रिजर्वेशन देते हैं तो एक वही एक पर्पस है हमारा कि हम किस तरीके से सोसाइटी में जो सोशल इनजस्टिस है उसको एलिमिनेट करेंगे। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट SC STs एंड OBCs, लेकिन जो कंसेप्ट आया सब्सिक्वेंटली कि जो एडवांस्ड क्लास हैं, जो कहें कि जनरल कैटेगरी है और उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो वो इसी स्टेप में हमारा, इसी डायरेक्शन में कि हमारा एक स्टेप है कि उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाए, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाए। सर एक क्वेश्चन है कि इज इक्विटी बेटर देन इक्वालिटी? इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी, इफ सोसाइटी अडॉप्ट इक्विटी, will it help society in providing social justice? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने पढ़ा कि इक्विटी और इक्वालिटी दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम कहें कि कोई एक व्यक्ति है जो कि लंगड़ा है फॉर एग्जांपल, सपोज, जिसके पैर में कोई डिफॉर्मिटी है, और एक नॉर्मल पर्सन है, और दोनों को हमने कहा कि 100 मीटर रेस में आप साथ दौड़िए, तो यहाँ हमने कहा कि सबको, दोनों को हमने बराबर ट्रैक दिया, बराबर समय दिया, बराबर मौका दिया, दिस इज इक्वालिटी। लेकिन जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को कुछ प्रीफरेंस देते हैं सो दैट ही कैन compete विथ अ पर्सन, विथ अ नॉर्मल पर्सन, तो ये इक्विटी होगी। ये इक्विटी होगी कि हमने उसको 10 मीटर आगे उसको रखा, या उसको अपने क्लास में रेस ऑर्गेनाइज की ओनली विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी विल लीड टू सोशल जस्टिस, इक्विटी विल लीड टू सोशल जस्टिस। हमने अपने इसमें टच भी किया इस टॉपिक को, इक्विटी विल लीड टू सोशल जस्टिस, कि सबको बराबर मौका मिलेगा। लेकिन मौका कैसे बराबर मिलेगा? डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, कि पहले आपकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, कि आप पहले से डाउन ट्रोडन हैं, आपको हिस्टोरिकली पीड़ित, दलित हैं, पीड़ित हैं, आपको किया गया है एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको हमें स्पेशल मौका देना पड़ेगा, सो दैट देयर कैन बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी, एंड दिस इज द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, one more question. What factors shape our values and beliefs, and why the justice is delivered too late? First part, madam, can you please repeat? What factors shapes our values and beliefs, What and factors, why the justice is delivered? What factors shape our values and beliefs? ये तो थोड़ा सा philosophical aspect हो गया। Factors obviously first of all is the society, your family, your close relatives, the environment in which you are being brought up, the society in which you are being brought up. These decide your values and beliefs. True. If you are brought up, that is what I said na, कि family background matters, sir. Family आपका, yeah. Yes, yes. If you are brought up in a surrounding where the people are, all the people are illiterate or all are thief,
all are dacoit, then obviously your mindset will be like that only. So it depends on your upbringing, your society, your values, all these things. And why justice is getting delayed, as we have discussed already, justice is getting delayed because of the loopholes in our justice delivery system. बहुत अल्टरनेट्स भी ढूंढे जा रहे हैं, एडीआर जिनको हमको कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम्स सिविल मैटर्स में, कि कैसे जस्टिस इजीली डिलीवर किया जा सके, मेडिएशन हो, चाहे लोक अदालत हो या आर्बिट्रेशन हो। लेकिन ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में कमियां हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है, जिसके कारण जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में देरी हो रही है। सही है सर। एक क्वेश्चन है कि जो 102nd अमेंडमेंट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ उस पे आप एक्सप्लेन थोड़ा सा बच्चे को बताना चाहेंगे कि क्या है एक्चुअल इट इज फॉर सोशल जस्टिस? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रोविजन था, आई थिंक आर्टिकल 332 में था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर बाद में सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, 323A परहैप्स ऐड किया गया, सेपरेट कमीशन वाज मेड फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड देन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। फिर उसी तरह बाद में फिर ऐड किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कमीशंस बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। पहले से एक सिर्फ SC/ST कमीशन की बात थी, फिर अलग अलग प्रोविजंस किया गया, फिर ओबीसी कमीशन। इनका मैंडेट यही है, इनका पर्पस यही है कि कैसे उनके पोजीशन को सोसाइटी में इंप्रूव किया जाएगा। वो रिकमेंडेशन देंगे कि इस तरह के लॉज बनाए जाने चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ये गलत हो रहा है सोसाइटी में पर्टिकुलरली फॉर दोज क्लास, तो उन सब के कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब पर्पसेस के लिए ये सारे कमीशंस का प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। And you are mute. People coming from the generalized section of the society or the general category, people who have no special rights or big bundles of currencies have social justice when their rights are being curtailed, especially relating to the education and selection boards. Yes, first two issues are there. Yes, sir. This question is in two parts. First is how people coming from the general category have no special rights can have their social justice. Then we can say that ये एक डिबेट है हमारी सोसाइटी में, जिसमें देयर कैन नॉट बी यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट में आप कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सही है या ये सही है ना। रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देयर कैन नॉट बी आइदर यस और नो। सबके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, दोज आर इन फेवर have their own arguments, those in against उनका अपना arguments है। but obviously अगर हम अपने पर्टिकुलर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी जो हमारा हिस्ट्री रहा है, जो राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड जो हमारी हिस्ट्री रही है, तो उसमें certain classes of the section, certain classes of the society have always been underprivileged, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। और उस सब उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्होंने फ्रेम किया है, फ्रेमर्स ने ये डिसाइड किया कि उनको ऑब्वियसली ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए था, फिर कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं जो कंटिन्यू होता है, बट ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री को देखते हुए ये चीजें जरूरी होती। दूसरा जो क्वेश्चन है कि दोज हैविंग बिग बंडल्स ऑफ करेंसीज कैन हैव देयर सोशल जस्टिस, तो ऑब्वियसली ये करप्शन की बात हो गई, ये इलीगल है और इस पे कुछ कमेंट करना भी मुश्किल है और ये कंट्रोल करना भी मुश्किल है। ट्रू सर, एक क्वेश्चन है कि खास तौर से रिजर्वेशन को लेके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि व्हाई रिजर्वेशन इज देयर, व्हाई रिजर्वेशन इज नॉट अबॉलिश्ड, व्हेन इट हैपन ओनली द एलिजिबल विल गेट द जॉब and get the service. Why is this a justice towards the students who are making 90 marks not getting a job and who get 50 marks getting a job? I mean, this is because of the category and all. same answer है मैम जो मैंने अभी दिया कि ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता है, बट हमारी जो हमारी हिस्ट्री रही है इंडिया की,
मिसिल फ्रॉम शूद्रस, जिनको वैदिक पीरियड्स में कहा जाता था कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो उस उनके कंडीशंस को एमेलिएट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि उनके लिए रिजर्वेशन हो ताकि वो लोगों के बराबर आ सकें। फिर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, अब ये जो हम कहें कि रिजर्वेशन जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, जो हमारे फ्रेमर्स ने दिया था कि दैट वाज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि कुछ पीरियड तक होगा, और साथ ही उसमें ये भी प्रोविजन किया था कि इफिशियंसी को कंसीडर करते हुए दोनों के बीच में बैलेंस रखा जाएगा, रिजर्वेशन एंड इफिशियंसी एज वेल एज देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन दोज टू। लेकिन ये कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हम कहते हैं कि उनका कंडीशंस पूरी तरह इंप्रूव नहीं हुआ है, दे हैव नॉट come equal to the other strata of the society, और political considerations भी हैं, तो ये continued है। आरक्षण का उद्देश्य अभी भी कहीं एक तरह से तो पूरा नहीं हुआ है, और कुछ सर सारे क्वेश्चंस करेक्ट, सारे क्वेश्चन ज्यादातर सर आरक्षण को लेके ही है, रिजर्वेशन को लेके। एक क्वेश्चन और बच्चे ने पूछा है कि क्या आरक्षण की अभी भी आवश्यकता है, और ये सर ऐसा टॉपिक है कि ये कभी खत्म नहीं होना है, खत्म नहीं, ये बड़े बड़े आज तक इस पे डिबेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्या आरक्षण की अभी भी आवश्यकता है, और डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण लाने का उद्देश्य क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बच्चों के अंदर डिस्कंटेंट है, ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्कंटेंट, obviously there will be discontent if I get मेरे अगर 95% मार्क्स आते हैं, 90 मार्क्स आते हैं, और I am not able to get admission or job, obviously it will lead to discontent, but we have to see in the broader context. हमें अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट से नहीं सोचना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, we have to think in the broader context कि इसका ओवरऑल पर्पस क्या है, इस पॉलिसी का, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पर्पस क्या है, तब हमको लगेगा कि हाँ ये प्रोविजन होना चाहिए। जैसा कि हिस्टोरिकली सम हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैव बीन कमिटेड टू द सर्टेन क्लास ऑफ द सोसाइटी, एंड वी आर अनडूइंग दोज रॉन्ग्स, कि उन रॉन्ग्स को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलत हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसीलिए ये प्रोविजंस दिए गए हैं। उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इट इज फॉर अस टू डिसाइड, it is for the parliament to decide, but some political considerations obviously are there, which leads to continuation of this policy. Yes sir. So now we are end with our question answer session, and there are no more questions are there, so now we are in the end of this session. I give a formal thank to you sir, thank you so much for giving us a light on this topic of social justice, जो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मेरे साथ ये हमेशा से था कि मैं हमेशा हर जगह यही बोलती रही, और मेरा आज भी यही कहना है, जो चीज आपने कही कि माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम कितने ही लॉज बना ले, हम कितनी ही कोशिशें कर लें, कुछ भी कर ले, जब तक हम यहाँ से नहीं सुधरेंगे या यहाँ से नहीं सुधारने की कोशिश करेंगे, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। सर आप खुद सोचिए कि निर्भया के बाद इतना स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के बावजूद भी कोई रेट कम हुआ है, क्राइम रेट रेप के लिए। आप आए अभी 4 दिन पहले ही आपने वो जो उन्नाव वाला सुना होगा, मतलब so that is the thing, that's it. Thank you so much sir for giving us your precious time and delivering a session on social justice, current threats and issues. I also formally thank Dr. Faculty of Education. I also thank Dr. Kiran Mishra ma'am, head of the department, NNS team, education department. I thank Madhvi ma'am and all my students and participants who have attended this session today. Thank you so much for being here, and thank you so much. Thank you so much sir. Thank you, man. Thank you. It's my privilege to be with you. With this, we should end this. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, sir. Okay. Yes, sir. Sir, you have really cleared the answers very nicely. I mean, the question with the topic, which is reservation and that's very hot. That cannot be, kabhi bhi wo khatam nahi hone wala hai. Yes. That is true. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thank you all the attendees and participants and all my students. Thank you so much for being here. Thank you, Madhvi ma'am. Thank you, Kiran ma'am. Thank you, Rekha ma'am.